Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the job today for me and you is to learn the first chapter of economics for 11th standard, Maharashtra board, basic concepts in economics. इस चैप्टर को थोड़े आगे लेके जाएंगे. पिछले ही लेक्चर में हमने ये चैप्टर की शुरुआत की है. इंग्लिश से हिंदी में आ जाता हूँ, ज़्यादा लोगों को समझ में आता है. ओके, और हमने इसका जो डेफिनेशन है कि अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है, ये हमने सीखा. क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न. ओके, अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, थोड़े अपने गाड़ी को सेकेंड गियर में डालते हैं. पिछली बार मैंने ये समझाया था कि साइंस दो तरीके के होते हैं, नेचुरल, सोशल. इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है, उनके सोचने की प्रक्रिया, प्रोसेस के साथ में कनेक्टेड है. इसका जो ओरिजिन है, स्पेशली ये वर्ड इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक भाषा से आता है. ओइकोनोमिया, ये वर्ड से इकोनॉमिक्स इंग्लिश में आ जाता है. जैसे ही अगर कोई पिक्चर जो साउथ इंडिया में बनती है बट फिर उसको डब करके हिंदी में, तो ऑब्वियसली वो मतलब लगभग सेम रहता है, बट जो भाषा है ऑब्वियसली बदल जाती है. ओके, हमने पिछली बार जो सीखा उसे थोड़ा आगे लेके जाते हैं. तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इस पे हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच? एक ट्री से, एक पौधे से, एक झाड़ से जुड़ा हुआ हिस्सा. अभी वो एक ही झाड़ का 2 या 3 हिस्सा होता है, ब्रांचेस, टहनी. इकोनॉमिक्स में जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है, उसको 2 ब्रांचेस में बांटा जाता है. अगर आप ऊपर थोड़ा ध्यान दो तो 1933, ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात है, सर रैगनर फ्रिश, इन्होंने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया था इकोनॉमिक्स के अंदर. एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक था मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे ही ये चैप्टर आगे जाएगा, आपको थोड़े थोड़े में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें क्या डील किया जाता है, किन चीज़ों का डिस्कशन, किन चीज़ों की स्टडी, पढ़ाई की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स
जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओ, जो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर है, तो माइक्रो और मैक्रो में जो वर्डिंग्स आते हैं उनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए माइक्रो का मतलब क्या है? वेल, थोड़ा मेरा पीछे देख लो। माइक्रोस्कोप आप सभी लोगों ने सुना होगा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। सो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के अंदर व्हेन यू लुक, you're not looking out for big things, you're looking out for small things which are not possible or visible with the naked eye। अब मतलब चश्मे लगाकर भी आप नहीं देख पाओगे छोटी चीजें। तो छोटी चीजों की पढ़ाई को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एंड ये छोटी चीजें क्या होती है? अगर एक देश के बारे में आप सोचो, भारत देश के बारे में, द कंट्री ऑफ इंडिया, देन भारत देश में आप जो हो वो एक आप जैसे, मुझ जैसे, हमारे परिवार जैसे, हमारे घर जैसे, दुकान जैसे, कंपनी जैसे, ये सारी चीजें मिलकर ये पूरा देश बनाती है। बट जब आपकी बात होती है तो आप हो एक माइक्रो यूनिट। आपके कमाई की बात होती है, आपके खर्चे की बात होती है, तो आपके जरूरतों की बात होती है। इंडिविजुअल एक आदमी, एक दुकान, एक इंडस्ट्री, बराबर, एक 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 एक। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब यही चीज हम ब्लो अप करेंगे, ब्लो अप का मतलब नहीं एक की नहीं पूरे जनता की बात हो रही है, एक के घर के नहीं सबके घर की बात हो रही है, एक इंडस्ट्री की नहीं सारे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो फिर वो मैक्रो हो जाएगा, जो एक राष्ट्रीय, नेशनल लेवल के ऊपर होता है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, बराबर, कुछ ऐसे वर्डिंग्स है जो आपको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का केनेथ बोल्डिंग ने एक डेफिनेशन दिया है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ माइक्रो और मैक्रो क्या है, जो ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन है, ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिन है, ओके। उसका मतलब क्या था, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर। नाउ जब आप ये वर्ड यूज करते हो, पर्टिकुलर मतलब एक, फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो जहां पर भी ये कहा है, इसका मतलब है एक आदमी, उस आदमी का खर्चा, कमाई, उसका एक दुकान, ओके, एक प्रोडक्ट, सब एक 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 एक। ये हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, जो मिस्टर केनेथ बोल्डिंग ने दिया है। अभी इसके अंदर हम थोड़ी चर्चा आगे करते हैं। हम कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले हैं, नॉट जस्ट आज के लेक्चर में, वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आगे आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आगे जाके, आप आगे जाके सीखने वाले हो, पढ़ने वाले हो, एक्सट्रीमली यूजफुल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सबको इफेक्ट करता है, जो सबके जिंदगी में हर दिन पैदा होता है, क्या? वांट। इंग्लिश में काफी सिंपल वर्ड है, जरूरत। हिंदी में थोड़ा लंबा हो जाता है, ओके। वांट का मतलब क्या है? आई वॉन्ट। वेल, सुबह उठते हो तो आई वॉन्ट समथिंग। खास करके छोटे बच्चे, मतलब क्योंकि वो कमाते नहीं है ना, तो उनको मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। और मम्मी पापा या तो क्योंकि उनको बच्चों के साथ बहुत प्यार है, या तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, दे डू देयर बेस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वांट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एक बच्चा जो 1-2 मिनट पहले पैदा हुआ है, और एक ऐसा इंसान, व्यक्ति जो 80-90-100 साल का है, हर दिन उनकी कोई ना कोई ज़रूरत रहती है। तो ये वांट को समझना, ओके, क्योंकि कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाते हैं, बराबर, इंडस्ट्रीज जो मार्केटिंग करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट का करते हैं जो लोगों की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर डूइंग प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट जो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो पूरा पैसा तो वेस्ट है ना। हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंटली, वांट क्या होता है?
वेल, ऊपर दिया गया है, want denotes a feeling of lack of satisfaction. ये इकोनॉमिक्स का थिंकिंग है. सिंपल भाषा में, इन कॉमन लैंग्वेज, want कैन बी referred टू एज अ नीड, हमारी जरूरत. वेरी सिंपल. जिस चीज की मुझे कमी है, जिस चीज की मुझे संतुष्टता नहीं है, उसको want कहा जाता है, क्योंकि मुझे वो संतुष्ट करना है, फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, जिसके लिए लोग काम पर जाते हैं, जिसके लिए लोग अपना टाइम एंड वक्त को सैक्रिफाइस करते हैं. अब ये जो want होता है, हमारी जरूरत, ये अलग अलग प्रकार का होता है. अलग अलग फैक्टर्स इस want को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या चेंज करते हैं. एक छोटे बच्चे की जरूरत, ओके, इन्फेंट, 1 या 2 दिन पहले पैदा हुआ है, 1 या 2 घंटे पहला पैदा हुआ है, और वो बात भी नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता है अपनी ज़रूरत के लिए. या एक टीनेजर, या एक मिडिल एज पर्सन, या एक सीनियर पर्सन, सबके एज के हिसाब से want बदलती जाती है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है आपका, कि wants का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे want बदलते रहता है. ओके, पहला चीज जो want को बदली करता है, ऊपर wants आर अनलिमिटेड. जैसे मैंने बोला, when a child gets up in the morning, he will not say, मतलब उसका एक प्लानिंग होगा, या माँ बाप कभी कभी बच्चों के लिए प्लान बनाते, टाइम टेबल, सुबह उठ के दांत घसना, ब्रेकफास्ट, अटेंडिंग स्कूल, कमिंग बैक, कंप्लीटिंग योर होमवर्क, प्ले टाइम, मे बी हॉबी, मे बी वॉचिंग टीवी, कि खाना, गो टू स्लीप. हाँ, बट ये एक टाइम टेबल हो गया. बट बच्चा सुबह से शाम तक, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बूढ़े, सारे की जो ज़रूरत होती है वो कभी एक नहीं होती है. ओके, वो अनलिमिटेड होती है, अनेक होती है. अगर एक ही वांट किसी का रहे, ओके, तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ना, वो जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो ठप हो जाएगी. अगर एक आदमी ऐसा कहे कि मैं मोबाइल खरीदूंगा, एक ही खरीदूंगा मेरे पूरे लाइफ के लिए, कितना भी पुराना मोबाइल क्यों ना हो जाए, मैं वही मोबाइल यूज करूंगा, तो फिर नए मोबाइल कैसे बिकेगी. इनफैक्ट कंपनीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है, बराबर, हाँ, ऑफ अ मोबाइल फोन, वो 3 या 4 साल के बाद में वो सॉफ्टवेयर इतना पुराना हो जाता है, द मोबाइल विल बी वेरी गुड. जिसने भी मोबाइल खरीदा था उसने वो मोबाइल का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा, बट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, उसके अंदर फेसबुक नहीं चल रहा है, उसके अंदर व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, गूगल मीट नहीं चल रहा है, तो आपको मजबूरी हो जाती है, आपको नया खरीदना ही पड़ता है. हाँ, तो या तो इंसान की जो ज़रूरत है वो बहुत रेयर है. ओके, कभी कभी लोग कहते हैं, ये दुनिया को, ये संसार को त्याग देते हैं और बोलते हैं भैया मेरी एक ही ज़रूरत है, ओके, मुझे ऊपर वाले के साथ में जाके कांटेक्ट बनाने का है जब जिंदा हूँ तब. ओके, मुझे ये सारी दुनिया और उसके टेंशन और उसकी चीज़ें सोचना नहीं है, मैं जाता हूँ कहाँ पे, पहाड़ी पर, और मैं संन्यास लेता हूँ. ऐसे आदमी का हो सकता है, ऐसे महिला का हो सकता है कि क्या है, एक ही वांट है. बाकी जो हम सब हैं, हमारी ज़रूरतें अलग अलग रहती है और अनेक रहती है. दूसरा, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर. आपकी खाने की ज़रूरत है, खाना, बट क्या वो सिर्फ मंडे को होता है? नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 डेज अ वीक. अगर आप उपवास ना करो तो बात अलग है, बट अदरवाइज तो चाय, नाश्ता, खाना, लंच, डिनर, ये तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन होता है. नेक्स्ट, वॉन्ट्स डिफर विथ एज. ऑलरेडी मैंशन टू यू, एक छोटे बच्चे का, एक 9 to 10 ईयर ओल्ड, एक 18 to 20 ईयर ओल्ड, एक 40 ईयर ओल्ड, और मे बी एक 60-70 ईयर ओल्ड की ज़रूरत अलग अलग रहती है, क्योंकि उनका एज डिटरमाइन करता है कि उनकी ज़रूरत क्या है. ओके, उनके एज के हिसाब से उनकी मेडिकल कंडीशन रहती है, उनकी फिजिकल कंडीशन रहती है, उसके हिसाब से उनकी ज़रूरतें चेंज होती रहती है. नेक्स्ट, वांट डिफर विथ जेंडर. ऑब्वियसली, ओके, इन फैक्ट
कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, ओके, एडवर्टाइजमेंट जो स्पेसिफिकली सिर्फ मेल ओरिएंटेड है और कुछ जो फीमेल ओरिएंटेड है। आजकल ऐसा ज़माना है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो गूगल के द्वारा आपके स्मार्टफोन के ऊपर किया जाता है वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपके घर में मम्मी पापा है, मम्मी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है उनके मोबाइल के ऊपर, ओके, और पापा के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है उनके मोबाइल के उनके ऊपर वो सेम नहीं होता। टीवी पे कॉमन होता है, ओके, बट जब वो एडवर्टाइजमेंट एक स्मार्टफोन पे होता है तो वो जेंडर स्पेसिफिक होता है, ओके, कि भाई आप मेल हो, आपको इसी तरह के एड्स दिखाए जाएंगे जो आपको पसंद आता होगा, और फीमेल को अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, डेफिनेटली, ओके, सभी के प्रेफरेंसेस अलग रहते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रोडक्ट कहते हैं, खरीदते हैं जो बजट में होता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो बजट वाला खरीदूंगा ही, मैं तो रस्ते वाला खरीदूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा ब्रांड का ही खरीदूंगा, मैं कोई रस्ते का चाइनीज़ नहीं खाने वाला हूँ, मैं तो जोमेटो स्विगी से बेस्ट चाइनीज़ ऑर्डर करूँगा। वो होता है प्रेफरेंसेस। तो प्रोडक्ट वही होता है, बट कुछ लोगों को लग्जरियस पसंद आता है, कुछ लोगों को नॉट सो लग्जरियस से भी काम चल जाता है, तो वो उनके लाइक्स डिसलाइक्स का मैटर होता है। सीजन्स के साथ में वांट्स बदलते हैं, यस। बरसात के सीजन में आपकी ज़रूरत अलग रहती है, गर्मियों में आपकी ज़रूरत अलग रहती है, ठंडी में आपकी सीज़न आपका ज़रूरत अलग रहता है, नॉट जस्ट आपका, सभी का, ओके। बरसात के सीज़न में रेन वेयर के लिए लोगों की ज़रूरत बन जाती है, गर्मी में पानी का जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों में जो भी वुलन क्लोथ्स रहते हैं वो ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। तो सीजन्स के हिसाब से आप हो एक ही, बट आपकी ज़रूरतें चेंज होती रहती है। कल्चर, इंडिया, भारत देश कल्चर से भरा हुआ देश है। मैनी कंट्रीज दैट यू गो टू, मे बी द कल्चर इन द एंटायर कंट्री इज द सेम, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी कंट्रीज में जो रिलीजन होता है वो एक तरीके का होता है, बट भारत देश इज मल्टी कल्चरल, इज मल्टी रिलीजन। हमारे यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं, हमारे यहाँ पर इतने ट्रेडिशंस हैं, हमारे यहाँ पर इतने जातियाँ हैं कि जो हमारा कल्चर है, बराबर, ये हर स्टेट में बदलते रहता है, ओके। हर स्टेट के अंदर आप 200-200 किलोमीटर चले जाओगे तो जो पहनावा है, जो बोली है, वो ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो जैसे ही कल्चर बदलता है उसी तरीके से ज़रूरतें भी बदलती है। सो इफ़ अ कंट्री इज ट्राइंग टू प्रमोट अ प्रोडक्ट इन इंडिया, इट कैनॉट मेक अ नेशनल एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एक पंजाब में जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है मे बी वो कन्याकुमारी में ना चले। तो उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यस, जिसकी जो कल्चर है उस हिसाब से हमको हमारा प्रोडक्ट और हमारा एडवर्टाइजमेंट बनवाना पड़ेगा, ओके। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में कहाँ पर जाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, ओके। ये क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में डिस्कशन के पहले कुछ आपको पहले मैं बता देता हूँ, और वो क्या है कि जो वांट्स आपके साथ में मैंने अभी अभी डिस्कस किया है वो वांट्स करीबन 6 या 7 थे, और मे बी 8 वांट्स। वो वांट्स के ऊपर अगर आपको कभी क्वेश्चन आया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट, कि वांट, व्हाट इज अ वांट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वांट, हाउ डू यू रिमेंबर? हियर ऑन दिस चैनल स्टीवन सर मेक्स इट इजी, वी ट्राई टू मेक इट इजी। हाउ? बाय मेकिंग अ कोड वर्ड फॉर इट। अभी वो कोड वर्ड कभी डायलॉग में होता है, कभी वो कोड वर्ड 1 या 2 वर्डिंग्स में होता है। आपको अगर वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक समझने हैं तो आपको याद रखना है स्क्रैप पबजी। PUBG is something that many of you are either into or definitely heard about it, and you have also heard that the Indian government above, okay, tried their best, did their best, maybe उनका thinking ऐसे था to completely remove and ban, scrap PUBG from the country of India, कि भाई teenagers के ऊपर उन लोग बहुत टाइम बिता रहे हैं, it is affecting their social behavior, it is affecting their performance academically, etc etc etc। हाँ, obviously there were other reasons, there were reasons of data, there were reasons of the data being taken by Chinese servers, etc etc etc। what you have to remember, वो politics में हम जाते नहीं हैं, okay। scrap PUBG, how is this going to help me remember the characteristics of wants? आपको ध्यान रखना है not the entire thing, scrap का P छोटा है intentionally because उससे कुछ डेवलप नहीं होगा, PUBG का B छोटा है, उससे कुछ डेवलप नहीं होगा। How do you remember with scrap PUBG
this particular code word? Well, you can see S से आता है seasons, C से आता है culture, R से recurring, A से age factor, P से preferences, U से unlimited, wants are unlimited, and G से gender. So अगर आपको scrap PUBG याद आता है, you can either use this P to remember or the P of scrap, but definitely preferences याद रहेगा. By remembering it in this style, in a coded style, okay, or in a short form style, it becomes a little less tiring to remember an important answer. So you can expect during the course of the entire year for economic lectures, okay, जो economics के subject के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई ना तो कोई तरीके के कोड वर्ड या एक कोड फ्रेज बनाया जाएगा. इट वुडंट ऑलवेज मेक सेंस टू यू, ऐसा मतलब नहीं करेगा, बट आपको याद करने में, रिमेंबर करने में वो पर्टिकुलर आंसर आपके हेल्प जरूर करेगा. ओके, तो ये हो गया वांट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे. अभी जो मुद्दा बाकी है दैट इज द मुद्दा ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स. वांट्स किस किस टाइप के होते हैं. ओके, फर्स्ट, क्योंकि यू कैन हैव एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके, एंड डू रिमेंबर एज एंड व्हेन द इंडिविजुअल चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2 जब समाप्त हो गए तो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट भी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो. ओके, उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हो. हाँ, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जिस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन दिया गया था और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो सारा कुछ आंसर्स कंबाइन करके समराइज करके एक पीडीएफ आपके साथ में शेयर किया जाएगा. सो एज अ नोट्स इट कैन बी यूजफुल टू यू इन रीडिंग देम अगेन एंड अगेन. ओके, सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. इकोनॉमिक ज़रूरतें, नॉन इकोनॉमिक ज़रूरतें. अबे इसके अंदर फर्क कैसे पता चलता है? वेल, इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, आपने कुछ खरीदा, आपने पैसे दिए, इकोनॉमिक ज़रूरत. बट आपको कुछ मिला, आप सेटिस्फाई हुए, आपको पैसा नहीं देना पड़ा, वो थी आपकी नॉन इकोनॉमिक ज़रूरत. तो दुकान पे जाके आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हो और दुकानदार को आप पैसा देते हो, बैंक ट्रांसफ़र करते हो, चेक देते हो, वो हो गया इकोनॉमिक वांट. बट जो हमें हर दिन सनलाइट मिलता है, जो हवे का, एयर का, ऑक्सीजन का हम कंजम्पशन करते हैं, ओके, एटलीस्ट मैं हॉस्पिटल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल. ओके, ये जो चीज़ें होती है ये हमारी ज़रूरत तो है पर ये नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि हमको मिस्टर सन को, मिस्टर एयर को पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो इकोनॉमिक मतलब पैसा पैसा इन एक्सचेंज, नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी. इंडिविजुअल वांट, कलेक्टिव वांट. इंडिविजुअल मतलब आपकी ज़रूरत क्या है? वेल, अगर मेरी आंखें कमज़ोर है तो ये जो चश्मा है ये मेरी ज़रूरत है. अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो जो स्टेथोस्कोप होता है, ओके, वो मेरी ज़रूरत है. अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो कैमरा मेरी इंडिविजुअल ज़रूरत बन जाती है. बट कलेक्टिव का मतलब क्या है? एक पूरा ग्रुप उसको यूज़ करता है. इंडिविजुअली एक पूरा ग्रुप. तो अगर आप एक बस की बात करें तो ग्रुप यूज़ करता है. मतलब ऐसे नहीं कि भाई सर मैं ही बैठ गया, मेरे अलावा और कोई भी ये बस नहीं यूज़ करेगा, नहीं, ये कलेक्टिव ज़रूरत है. ट्रेन्स की बात करो, ये एक कलेक्टिव ज़रूरत है. सो देयर आर सम वांट्स जो इंडिविजुअल होते हैं, देयर आर सम वांट्स जो पूरे ग्रुप के लिए रहते हैं. अगेन ये सारी चीज़ें सोच कर कंपनीज जो है क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट, उनकी स्ट्रैटेजीज को प्लान आउट करते हैं. द लास्ट कैटेगरी ऑफ वांट्स, व्हाट? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी. ओके, नेसेसिटी ज़रूरतें 200 साल पहले भी थी, 1 सेंचुरी पहले भी थी और आज भी है. रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये नेसेसिटी है. भाई अगर मुझको जीना है आज कल परसों तो रोटी, कपड़ा, मकान तो होना ही चाहिए. ये मेरी नेसेसिटी की बेसिक ज़रूरतें हैं. हाँ, कंफर्ट मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे काम को थोड़ा कंफर्टेबल बना देगी. हाँ, तो पुराने ज़माने में आपके घर में मसाला बनाने के लिए जो खाने में इस्तेमाल होता है, बड़ा सा पत्थर होता था,
उसके ऊपर दूसरा पत्थर रह के आपकी मम्मी आपकी नाना नानी उसे कूटते थे। अभी मिक्सर ग्राइंडर आ चुका है, आपको ऐसे लेके कपड़े धोने पड़ते थे, आपको नहीं, नाना नानी को करना पड़ता रहेगा। वॉशिंग मशीन आ गए तो चीज़ें थोड़े कंफर्टेबल बन गई, लाइफ इनकी वजह से थोड़ा कंफर्टेबल बन गया। तो ये कंफर्ट्स होते। लग्जरीज की बात करें, हाँ लग्जरीज के अंदर आप गाड़ी कह सकते हो, आप एक आलीशान बंगला कह सकते हो, ये या बड़े 5 स्टार होटल में वेकेशन पे जाना, ये सारी चीज़ें आप लग्जरीज के अंदर गिन सकते हो। अकॉर्डिंगली जिसकी जो ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरतों का एडवर्टाइजमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है, कंफर्ट्स का एडवर्टाइजमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है, और लग्जरीज का एडवर्टाइजमेंट, एक लग्जरीज का आइटम एक गरीब के लिए सामने नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑप्ट करने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से थिंकिंग स्ट्रैटेजीज प्लान होते हैं। तो जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी क्विकली आई विल जस्ट रिपीट दिस फॉर यू। जो पहला टाइप का क्लासिफिकेशन था वो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक था। प्लीज डू रिमेंबर दिस, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स इसके ऊपर डेफिनेटली आ सकते हैं। दे कैन गिव यू 4 वॉन्ट्स 1 2 3 4 एंड दे विल से प्लीज क्लासिफाई दिस इनटू इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, classify this into individual and collective want, and classify this into necessity, comfort and luxuries. I hope this explanation for today was understood by you. I hope scrap PUBG ka short form was understood by you, which helps you remember want and the characteristics of wants. बाकी इस चैनल के बारे में आप जानकारी हमारा आप खबरी बन जाइए और इस चैनल की खबर अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। राइट नाउ FYJC के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए ये चैनल पे अकाउंट्स का पूरा सिलेबस थोड़े थोड़े करके और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके जितने जल्दी हो सके कवर अप किया जाएगा। उसका अपडेट टेलीग्राम के चैनल के ऊपर रेगुलरली दिया जाता है। चैनल के अगर आप नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि YouTube के द्वारा आपको नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिए। उसके वजह से क्या होता है, YouTube जो एक बड़ा कंपनी है वो पता चलता है या उनको पता चलता है कि या स्टीवन सर मेक्स इट इजी करके एक चैनल है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा तो कुछ अच्छा काम कर रहा है। दैट इज़ इट फॉर मी फॉर द डे। आपके समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी मिलेंगे इस सब्जेक्ट के, इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ में। टिल दैट टाइम बच्चों का, बड़ों का, सभी का परिवार में ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय।